Hello friends, in first video I have already discussed the Coulomb's law, and in next video I am just starting the Coulomb's law in accordance with the Newton's third law motion. एक्चुअली बच्चों का मोस्टली स्टूडेंट का डिमांड था कि सर आपके हमें नोट्स चाहिए, आपके नोट्स बड़े यूज़फुल हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये इजीली लर्न हो जाते हैं, इनकी लैंग्वेज बहुत सिंपल है और बड़े यूज़फुल नोट्स हैं। चलिए बच्चों की बात टॉप प्रायोरिटी पे। Coulomb's law in accordance with the Newton's third law of motion. It means Coulomb's law satisfy the Newton's third law of motion. Coulomb force is considered to be a Newtonian in nature. As per Coulomb's law, these are the two charges Q1 and Q2 which are separated by distance r, which are placed in a vacuum. We can consider it, and the force between these two charged particles, essentially charged particle, is given by F12 is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 over R square and R21. R F12 means force experienced by Q1 charged particle due to Q2. Okay, R21, it is a position vector which is directed from Q2 to Q1. Clear? And next, similarly, we have to write down the F21, 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 over R square. This one is a R12, means force is position vector is directed from, that is unit vector directed from Q1 to Q2, and force experienced by a Q2 charge particle. Means next we can write F21 is equal to, अगर हमें इस पोजिशन वेक्टर को F12 है, ये मैग्नीट्यूड है, तो यहाँ पर F12 लिख सकते हैं, F21 लिख सकते हैं, दोनों में कोई भी चीज़ लिख सकते हैं। नेक्स्ट R12 लिख सकते हैं, R21 लिख सकते हैं। R12 इज इक्वल टू माइनस R21 यूनिट वेक्टर, क्यों? बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ पोजिशन वेक्टर विच इज अपोजिट, दैट्स वाई आई हैव रिटन द माइनस साइन ओवर हियर। ठीक है, ये क्लियर हुआ। सो वी पुट द वैल्यू ऑफ R12 की वैल्यू यहाँ पर R21 रखेंगे माइनस साइन के साथ, तो ये आ जाएगा। फिर ये F21 इज इक्वल टू माइनस F21, it means force exerted by 2 point charged particle on each other which are equal and opposite. Due to this fact, the Coulomb force is considered to be a Newtonian in nature. Clear? Next, relative permittivity and dielectric constant. It is the ratio of permittivity of a medium to the permittivity of a epsilon naught, means vacuum. That is a relative permittivity. Or dielectric constant means that is it is relative. Dielectric constant does not has any unit because it is the ratio of same type of quantities. Clear? And next, it is the ratio of force. In terms of force भी हम निकाल सकते हैं। epsilon r is equal to, means force between the charged particle which are placed in a medium, in vacuum, to the force between the charged particle placed in a medium. I have written force between 2 point charges at rest placed in air to the force between the same charges placed in a dielectric medium separated by the same distance, and their ratio, that is also equal to relative permittivity and dielectric constant. Clear? Next, dielectric constant is also known as the SIC, specific inductive capacity. इसको specific inductive capacity भी कह सकते हैं। And dielectric constant of a medium, that is dielectric constant of a medium decreases with increase the temperature. ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये इस टाइप के आ जाते हैं कि नेम द फैक्टर विच अफेक्ट द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सो इट विल डिक्रीज करेगा और इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। SI यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इज कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर और फेरेड मीटर। ये एक अलग से आपके सामने एक नोट अलग से हो जाएगा, देखिए ये फेरेड मीटर का। सो ये ध्यान रखिए कि and that is unit of permittivity. Permittivity of medium is the property of a medium. Permittivity of the medium is the property of medium which determine the number of electric lines passing through it. Dielectric constant of metal is infinity. ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट देखिए इन्फिनिटी है, ये भी एक MCQ क्वेश्चन का पार्ट है कि व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मेटल। ठीक है, नेक्स्ट SI यूनिट ऑफ चार्ज दैट इज कूलम, एंड ये 1 कूलम को डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, दैट इज 1 कूलम कैन बी डिफाइंड एज चार्ज विच रिपेल और अट्रैक्ट टू इक्वल चार्जेस प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम इट
इन वैक्यूम विद अ फोर्स, उनके बीच में फोर्स लगेगा और 9 × 10⁹ न्यूटन। मीन्स यहाँ पर ये 1 कूलम को डिफाइन किया है। क्लियर। नेक्स्ट 1 कूलम इज इक्वल टू एम्पियर सेकेंड। ये हमने Q इज इक्वल टू IT हमारा एक फॉर्मूला था, वहाँ क्लास 10 पे हम पढ़ चुके हैं वहाँ से। CGS यूनिट ऑफ चार्जेस आर 2, ESU यूनिट स्टेट कूलम, एंड यहाँ पर EMU ऑफ चार्ज और AB कूलम एब्सोल्यूट कूलम। 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टेट कूलम हो गया, और इट इज इक्वल टू 1/10 एब्सोल्यूट कूलम हो जाएगा। क्लियर। तो 1 एब्सोल्यूट कूलम इज इक्वल टू 10 कूलम, और ये कन्वर्ट किया हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट कूलम फोर्स बिटवीन द चार्जेस इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। यहाँ पर हमने there are two charge particle Q1 and Q2 and their position is defined by the position vector R1 and R2, and these charge particle point charge particle which are at rest, and their position is defined by the position vector R1 and R2. First force experienced by the Q1 charge particle due to Q2. Clear. So that is 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon BA square। मतलब यहाँ से इसकी तरफ फोर्स एक्ट कर रहा है, दैट इज पोजिशन वेक्टर इज डायरेक्टेड फ्रॉम R21, और यहाँ पर हम BA भी लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर लगा करके। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे। OB, भाई फोर्स हमारे इस पे लग रहा है, तो OB प्लस BA इक्वल टू दैट इज OA, एंड नाउ वी फाइंड आउट BA, तो BA इज इक्वल टू R1 minus R2 हो जाएगा, that is R21, means position vector is directed from R2 to R1, and now we put their value, means BA की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा, यहाँ पर R1 minus R2 आ जाएगा, ये इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, क्योंकि हमारा यूनिट वेक्टर को अगर हम चेंज करते हैं, जैसे यहाँ पर इसको R21 दैट इज यूनिट वेक्टर दैट इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा, दैट इज सॉरी एक सेकेंड, एक्चुअली यूनिट वेक्टर कंडीशन लाइक दैट मीन्स वेक्टर R unit vector that is equal to R vector upon R magnitude। by this one, so it is equal to R1 minus R2 का क्यूब हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट, ये F12 हमने निकाल दिया। सिमिलरली वी कैन डिटरमाइन F21, यहाँ पर हो जाएगा R2 माइनस R1 हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। इट मीन्स ये हमने इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर हमने निकाल दिया। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कूलम फोर्स बिटवीन द मल्टीपल चार्जेस और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इन क्लास 11th ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है। द रिजल्टेंट फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ गिवन इलेक्ट्रिक चार्ज इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ अ फोर्स एक्सर्टेड बाय इंडिविजुअल चार्ज पार्टिकल। यहाँ वेक्टर सम इसलिए लिया गया है बिकॉज देयर इज ए सम ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी मीन्स फोर्स। ये F0 इज अ रिजल्टेंट फोर्स। कोई भी F0 चार्ज पार्टिकल पे उस पर ड्यू टू Q1 चार्ज पार्टिकल की वजह से, Q2 चार्ज पार्टिकल की वजह से, Q3 चार्ज पार्टिकल की वजह से जो फोर्स टोटल फोर्स लग रहा है दैट इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ चार्ज पार्टिकल इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय इंडिविजुअल अदर चार्ज पार्टिकल। ये Q1 की वजह से हुआ, ये Q2 की वजह से हुआ, ये Q3 की वजह से, और वेक्टर साइन के साथ प्लस साइन लगाया हुआ है। तो ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होता है। इसी को मैंने इन राइट हैंडेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ले लिया है। ये हमारा Q0 चार्ज पार्टिकल है, ये Q1 ले लिया, Q2 ले लिया, Q3 ले लिया। अब Q0 फोर्स एक्सपीरियंस बाय Q0 चार्ज पार्टिकल ड्यू टू Q1, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q1 अपॉन R10 मीन्स 10 लिख सकते हैं, और दैट इज पोजिशन वेक्टर 10। इट मीन्स पोजिशन वेक्टर इज डायरेक्टेड फ्रॉम दैट इज 1 to Q0 चार्ज पार्टिकल, Q1 to Q2 चार्ज पार्टिकल,
और इसको हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन क्यू वन आर नॉट माइनस आर वन टू। पिछले टॉपिक के अंदर हमने ये निकालना बताया था आपको, आर नॉट माइनस आर वन। सिमिलरली वी कैन डिटरमाइन F21 लिख सकते हैं, F31 लिख सकते हैं, और जनरली हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हमारा दूसरा टॉपिक स्टार्ट होगा, दैट इज अ कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इट इज ऑल्सो a very important topic, means there are number of questions which are based on this topic. According to the quantization of a charge on a charged body is equal to integral multiple of basic unit of charge. But in most of the practical situation, the magnitude of charge on an electron and proton is so small as compared to the charge on a body involved in the quantization of charge may be ignored in the macroscopic study of charge. जब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की हम बात करते हैं तो माइक्रोस्कोपिक स्टडी जब हम कर रहे हैं तब हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन मैक्रोस्कोपिक लेवल पे जब हम स्टडी कर रहे हैं तो वी कैन इग्नोर द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. फॉर इट, चार्ज बॉडीज आर रीजनेबल साइज and charge can have a continuous value which may be a 1 dimension, 2 dimension and 3 dimension which are known as the, means 1 dimension में linear charge distribution होगा, 2 dimension में surface charge distribution हो जाएगा और 3 dimension में volume charge distribution हो जाएगा. वन बाई वन हम डिस्कस करते हैं. ठीक है, linear charge distribution क्या है? means when charge uniformly distributed over the line, that is called linear charge distribution. इसको हम एक्सप्लेन करते हैं. मीन्स और दूसरी डेफिनेशन, लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है लैम्डा इज इक्वल टू क्यू ओवर एल, चार्ज पर यूनिट लेंथ. ऐसा यूनिट हो जाएगी कूलम पर मीटर. इसको इफ डेल्टा एल इज वेरी स्मॉल दैट टेंस टू जीरो, तो डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा एल हो जाएगा. इट कैन बी रिटन एज डी क्यू ओवर डी एल. क्लियर? नेक्स्ट, मोस्ट दिस वन इज अ लाइन चार्ज. क्यू चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर दिस लाइन and we take a small element of this line, that is a dl, and due to this small element of dl, what is the force experienced by this one q naught charge particle? That is a r unit vector is the position vector. So we can write df, vector sign लगाएंगे 1/4 pi epsilon naught dq q naught upon r square and r unit vector. Total force we integrate करेंगे because due to दिस लाइन चार्ज निकालना है हमें, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, आर यूनिट वेक्टर लिखेंगे, इंटीग्रेशन साइन लगा दिया. क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये हमारे कॉन्स्टेंट हो गए. डी क्यू की जगह पर लेमडा डी एल लिख सकते हैं, आर स्क्वायर एंड आर कैप. क्लियर? सिमिलरली हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. व्हेन सरफेस चार्ज इज कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द surface is called surface charge distribution. means 2 dimension की बात करेंगे तो चार्ज पर यूनिट एरिया दैट इज कॉल्ड surface charge density. यूनिट हो जाएगी कूलम पर मीटर स्क्वायर. यहाँ पर फोर्स हो जाएगा 1/4 पाई. ये सरफेस ले लिया, एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया ds, और इसकी वजह से इस पर क्यू नॉट पे फोर्स निकाला, इन दोनों के बीच में निकाला. फिर इस पूरी बॉडी के लिए हम बॉडी के और इस चार्ज के बीच में निकालेंगे तो इंटीग्रेट करके निकालते हैं हम. ठीक है, और सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी एस हमारा हो जाएगा. डी एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा डी एस, डी क्यू की जगह पर सिग्मा डी एस, क्यू नॉट एंड आर यूनिट वेक्टर एंड आर इज द पोजिशन वेक्टर. ठीक है, हमने रखा इसको क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज क्यू नॉट, इट इज क्यू नॉट. यहाँ पर हमारा क्यू नॉट हो जाएगा, दैट इज क्यू नॉट, ये क्यू नॉट होगा. देखिए यहाँ पर दैट इज क्यू नॉट. दिस वन इज अ कॉन्स्टेंट, ये हमारा कॉन्स्टेंट पार्ट है. सो सिग्मा डी एस अपॉन आर कैप एंड आर स्क्वायर. ये हमारा सरफेस फोर्स ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमारा एफ एस कह सकता हूँ. देखिए यहाँ पर एस. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की. वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन when charge continuously distributed over the volume, that is called volume charge distribution. Charge per unit volume of a body is called volume charge density. It is denoted by rho, and rho is equal to q over v, means coulomb per meter cube हो जाएगा इसकी यूनिट. एंड डेल्टा v is very small, tends to 0, डेल्टा q over डेल्टा v
मतलब डेल्टा क्यू चार्ज है डेल्टा वी वॉल्यूम पर, तो दैट इज रो इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी वी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा, दिस वन इज अ बॉडी, क्यू चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वॉल्यूम on this body, and this one is a q naught charge particle, r is the position vector. Force between them df is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught dq q naught and r unit vector r square, and similarly q naught upon 4 pi epsilon naught constant आ जाएगा बाहर, और इसकी dq की वैल्यू रखेंगे तो ये हमारा फोर्स आ जाएगा। क्लियर। बाकी ये की पॉइंट्स हैं रिगार्डिंग द गोल्डी फ्लैक्टोस्कोप, ग्राउंडिंग ऑफ द अर्थ, इसमें ये सब चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस हो गई हैं, कोई चीज़ रह गई है इसमें तो वो हमने यहाँ पर लिख दी है। ठीक है, तो इसको तो आप अपना थोड़ा सा पढ़ लीजिए फॉर नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू। ये जैसे ये फॉर्मूला है, इसका आगे आपको समझ में आएगा कैसे आया। ठीक है, अभी हम इसके बारे में ज़्यादा नहीं डिस्कस करेंगे। ये इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एंड ड्रॉप ऑफ रेडियस आर एंड क्यू चार्ज combine to form a bigger drop, then charge density on the bigger drop is 1/3 n to the power 1/3 times of a charge density of a small drop। तो ये कुछ की नोट्स हैं फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पर्पज से, ये हमने लिख दिए थे। ये इंड्यूस चार्ज का लिए हमने ऑलरेडी हम बता चुके हैं। ठीक है, कैपेसिटेंस से इसका डराइव किया हुआ है हमने इंड्यूस चार्ज के लिए। और ये when force between the two charges q1 and q2 is to be maximum, कब मैक्सिमम होगा, तो दैट इज़ q1 प्लस q2 बाई 2, जब उन दोनों के बीच में चार्ज का रेशियो ये हुआ हमारा, दोनों बॉडी पर उनका एवरेज आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ इसी को यूज़ करते q चार्ज को कैसे हम डिवाइड करें टू पार्ट्स में, जिससे उन दोनों के बीच में फोर्स मैक्सिमम लगे, तो दैट इज इक्वल टू हाफ हाफ हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये हमारे कुछ की पॉइंट्स थे, और इसी के साथ ये टॉपिक ख़त्म होता है। अब इसके क्वेश्चंस हमारे शुरू होंगे। ठीक है, ओके। इन नोट्स को एक बार पढ़िए ज़रूर, नोट्स पहले करिए फिर एनसीईआरटी करिए बेटा, और इतना कर लेंगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप, फर्स्ट नोट्स, देन एनसीईआरटी क्वेश्चंस इन टेक्स्ट एंड एक्सरसाइज, एंड आफ्टर दैट you just solve the previous year's question, then your preparation is complete. Clear? Okay.